So today we will be solving some of the problems of queuing theory, which involves basically uh, like some kind of conditions are there. So till now we haven't solved any questions which is having conditions. So we will practice some of the questions like this question, as you can see on the board. It's written, the rate of arrival of customers at a public telephone booth follows Poisson distribution with an average time of 10 minutes between one customer and the next. So this is arrival rate given. Okay. So can we write here lambda? So lambda, how much is that? 10 minutes. That means how much per hour? So 10 by 60 by 10 per hour per hour. That is 6 per hour. The duration of a phone call is a mean service time, okay, with mean time of 3 minutes. So service time is given, that is how much per hour? So 60 by 3, that is 20 per hour. So lambda and mu we have to write in per hour. So can we calculate rho? Lambda upon mu, that is 6 upon 20, that is 0.3. Next question is there, what is the probability that a person arriving at booth will have to wait? Okay, so he has to wait. That means what? That means there is a person there who is getting served or who is actually talking on the telephone. This is uh, so either there may be a person, like this is the telephone booth. Okay, inside there is a person. So the person who will arrive, he has to wait. Or let's suppose there is one person inside the booth and one person is outside. So another person which will come, he has to wait. So what are the condition in which the person has to wait? So either there is a person inside the booth, or there are many persons in the line, more than one person in the line. That means it is a probability that, yeah, just right, probability for a person, or you can say just arrival, for an arrival to wait. So either there can be no person in the queue and only one person in the system, that is who is talking already, or there may be more than one person in the queue. So what is the probability of that? So that will be probability that there is no person in the system. So total probability, see, there is a probability that there is one person, 0%, 1%, 2%, like that. That is total n person is 1. Sorry, infinite. So what is the probability that there is no person in the queue? Or you can say we want this probability, no? So this probability, if we just take at p is equal to 1 minus p. Okay, so probability that either one person is there in the queue or two person is there in the queue or many persons in the queue, that probability will be 1 minus p. Means, so we have to write here that if a person is arriving, then he has to wait, means 1 minus p naught. So what is the formula of p naught? So p naught is equal to 1 minus rho, 1 minus rho, right? So this will be rho, right? So this is simply 0.3. So this is the probability. Now, so Rajiv,
Are you able to hear me? Good morning. Okay, so actually, so today I am. Oh, it's still going. Okay. So today I am doing this. Can you just mute yourself? Okay. So what I am doing today is actually I am solving some of the problems. Already the syllabus I have covered, whatever portion I was supposed to teach. But today I'm talking about some of the questions which contains conditions. Okay. Till now I didn't give any example where conditions are given. So that's why today we are going to talk about that. So here already I told that in this question, as we can see, lambda is given 10 minute. That means how much per hour? 6 per hour. Mu is given 3 minute means 20 per hour. So every time if it is given in minutes, then we convert it into per hour, and then we calculate rho. Rho is equal to lambda upon mu. So here it is written a public telephone booth. That means it's a single server model. So single server model problem is there. So very simple. We know the all the formulas of this. So just apply the formula. So the question is, what is the probability that a person arriving at the booth will have to wait? So probability that there is no customer in the system, probability that there is one customer in the system, probability that there are two customers in the system. Similarly, like probability that infinite number of customers in the system. So the summation of all the probability is 1. So he is asking that he has to wait. तो वेट करने का मतलब है कि अगर जीरो कस्टमर होगा तो क्या उसको वेट करना होगा? नहीं करना होगा. दैट मीन्स इट इज एक्सक्लूडेड. अगर एक कस्टमर होगा सिस्टम में तो क्या उसको वेट करना पड़ेगा? यस. द पर्सन हु इज अराइविंग ही हैज टू वेट व्हेन ऑलरेडी देयर इज वन कस्टमर. सिमिलरली अगर टू कस्टमर्स हो, ही हैज टू वेट. दैट मीन्स वी वांट द समेशन ऑफ दिस टोटल. So summation of this total is equal to 1 minus p naught. So that we have written the probability for an arrival to wait is equal to 1 minus p naught. And in case of single server model, p naught का formula होता है 1 minus rho. So that we have calculated this one. Second question, he is asking what is the average length of non-empty queue from so that means average length. Yes. Okay, the formula I'll tell. So there are first of all lambda and mu will be given, and the model you have to identify which model it is. So is it will be either, it may be indicated like this, mm1. Okay, infinite like this it will be given. Okay, so this is single server model, Poisson's arrival and exponential service time. So this tells about the single server model. So if this is given and lambda is given and mu is given, so this many only is required for the queuing method or queuing question. So if you can identify these things, then now you can easily solve. So this is for single server. So first formula will be rho. Rho is equal to lambda upon mu. Second formula is the formula for p naught, that is probability of zero customer in the system. That means probability of empty system, that is 1 minus rho. Okay, probability of n customers in the system, that is p naught into rho to the power n. That is the third one. Okay, and probability, this one is over. Now probability that there is like how many not probability that expected number of customers in the system.
expected number of customers in the queue, expected waiting time in the system, and expected waiting time in the queue. So mainly these formulas only are required. So first of all, LQ. So LQ is 1 upon, it is uh, oh okay, LQ minus rho. So LQ plus rho, that is equal to rho upon 1 minus rho. This is the formula for LS. Okay, this is the formula for LS. From here we can calculate LQ, that is rho upon 1 minus rho. And WS formula is LS upon lambda, and uh, LQ upon lambda. So these are the four formulas. This is for single server queuing model. When there is only okay, there are infinite capacity and all those things. So nothing is limited here. Everything is, so this one is there. Already I have given one video in which I have made 3 columns and I have given all the types of methods. So here now with this, and mainly in the examination this type from single server model only question will come, and even in GATE examination also this is the syllabus. Till now I haven't seen any question which is asked from other models like multi-server model, or you can say limited number of customers, or you can say limited capacity. तो वैसा क्वेश्चन नहीं है. इनफाइनाइट कैपेसिटी मतलब जैसे टेलीफोन बूथ, तो वहाँ पे इनफाइनाइट लोग आ सकते हैं. ओके, सो देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ पीपल दैट कि इतना ही लोग आएंगे. So mainly our focus should be on this, and different types of problem we will see from uh, this model. Okay, so let us see this one. So here he is asking average length of Q. So that means this formula LQ, right? So LQ is equal to, if you just minus, okay, rho square, or just first of all find out LS. LS is equal to rho upon 1 minus rho, that is how much, 0.3 upon 0.7, that is around 0. 0.4, around 2, something like that, 4. So LS, LQ is equal to LS minus rho, 0.42 minus 0.3, that is 0.12. So this is the answer of second one. Now third, this is the now this problem we haven't solved this type of thing earlier also, that if there is a condition given, then how we are going to solve it. Let me, oh, achha. Okay, so next page I should go, I think. I'll delete this one. क्या क्या नहीं समझ में आता है? बोलो, क्या क्या बोल रहे हो राजीव? ओ, बहुत इशू है, आई थिंक. नाउ इज इट ओके, और अभी भी कट कट के आवाज आ रहा है? ठीक है, क्या नहीं समझ में आता है? ओ, अच्छा,
हाँ, जैसे ये क्वेश्चन देख करके समझ में नहीं आया कि ये सिंगल सर्वर का क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे सर्वर का, पहले देखो कि कितने सर्वर के बारे में पूछ रहा है। तो सर्वर मतलब यहाँ पे सर्वर आइडेंटिफाई करना है, विच इज द सर्वर। सो कस्टमर्स आर अराइविंग टू ए टेलीफोन बूथ, so telephone booth is having one telephone, तो ये पब्लिक टेलीफोन। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि टेलीफोन बूथ में 3-4 टेलीफोन्स रखे हुए, ऐसा नहीं। तो दैट मीन्स ये सिंगल सर्वर का क्वेश्चन सबसे पहला, ठीक है। अगर अगर कोई और क्वेश्चन होता है, जैसे लाइक ऐसा लिखा रहता है, हाँ आगे आगे भी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन, द महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड विल इंस्टॉल ए सेकंड बूथ। अब ये देखो, ये सेकंड बूथ जैसे ही बोल रहा है, इसका मतलब अगर उसने इंस्टॉल कर दिया, 2 बूथ इंस्टॉल कर दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सिंगल सर्वर ना होकर के मल्टी सर्वर हो गया, मल्टीपल सर्वर। तो मल्टीपल सर्वर का प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन अभी अभी ये क्या है, वो सिंगल सर्वर मॉडल। तो ऐसा लिखता कि देर आर टोटल यू नो 2 टेलीफोन्स इन द पब्लिक टेलीफोन बूथ, ठीक है, तब आप वो मल्टीपल सर्वर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे म्यू और लेमडा तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको, लेमडा और म्यू समझ में आ रहा है। फिर क्या है ये क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन अराइविंग एट द बूथ विल हैव टू वेट। तो पहला चीज LS, LQ, WS एंड WQ, ये 4 जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर ये 4 क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसमें से हो सकता है 1 या 2 पूछा जाए, ठीक है। आपको ये समझना है, LS मतलब expected number of customer in the system, customers in the system। तो ये सिस्टम का है, दिस इज अबाउट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू। क्यू और सिस्टम में क्या डिफरेंस है, मैंने बताया था कि लेट सपोज दिस इज द टेलीफोन बूथ और यहाँ पे कस्टमर्स का लाइन लगा हुआ है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि दिस इज द क्यू एंड एक कस्टमर जो है वो इनसाइड में है, वो फोन पे बात कर रहा है, ही इज यूजिंग द टेलीफोन। सो दैट मीन्स इसका सर्विस ही इज गेटिंग सर्व्ड राइट नाउ, दे आर वेटिंग एंड दिस इज गेटिंग सर्व्ड। ओके, तो ये टोटल कस्टमर्स जो होंगे उसको कहते हैं सिस्टम। ओके, मतलब इस टोटल सिस्टम में कितने कस्टमर्स हो गए और ये क्यू में कितने कस्टमर हो गए, तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए पर्सन अराइविंग एट द बूथ विल हैव टू वेट। ओ, ये तो दूसरा चीज है। हाँ, ये व्हाट इज द एवरेज लेंथ, दिस इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स, और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है एवरेज लेंथ ऑफ क्यू और सिस्टम। तो दोनों सेम चीज है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम और एवरेज लेंथ ऑफ द सिस्टम, सो बोथ आर सेम थिंग। सो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन एम्प्टी क्यू, तो जैसे ही क्यू बोल रहा है इसका मतलब कि LQ पूछ रहा है। अगर आप वहां रहता नॉन एम्प्टी सिस्टम, देन LS, सिंपल सा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में 3 तरह के प्रोबेबिलिटी पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछेगा कि जैसे यहाँ पे पूछा क्या है, विल हैव टू वेट, प्रोबेबिलिटी निकालिए जब पर्सन को वेट करना है, तो वेट कब करेगा, इसका मतलब कि वो ऑलरेडी फिल्ड है, नॉन एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सिस्टम, दैट इज नॉन एम्प्टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एम्प्टी सिस्टम। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इसी को चेंज करके बोलेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए सिस्टम इज एम्प्टी और द बूथ इज एम्प्टी।
तो सेम क्वेश्चन हो गया। एम्प्टी मतलब नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं हुआ, मतलब देयर यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट पी नॉट, बट यहाँ पे बोल रहा है कि ये नॉन एम्प्टी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू बी नॉन एम्प्टी, तो ये क्वेश्चन है 1 माइनस पी नॉट का। यहाँ पे आपको 1 माइनस पी नॉट निकालना है जो हमने सॉल्व किया, ठीक है, 1 माइनस पी नॉट। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई कर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन अराइविंग finds that there are 5 customers in the system। क्वेश्चन रहेगा कि 5 कस्टमर्स है, तो आपको P5 निकालना है। 5 कस्टमर्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो Pn का वैल्यू पता है आपको, n के जगह 5 रख दो, तो P नॉट रो टू द पावर 5, सिंपल, ठीक है, जहां पे P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन, यही 3-4 तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एम्प्टी का प्रोबेबिलिटी, नॉन एम्प्टी का प्रोबेबिलिटी, और एक नंबर दे दिया जाएगा कि टेल मी कि 10 कस्टमर्स है या फिर 15 कस्टमर्स है, तो ऐसा करके आपको पूछा जा सकता है। तो यही सब कुछ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कंडीशन का क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है कि सेकंड बूथ ही वांट्स टू इंस्टॉल ए सेकंड बूथ, जब वो कन्विंस्ड हो जाए, व्हेन ही इज कन्विंस्ड that the customer would expect waiting for at least 3 minutes for their turn to make a call। मतलब आप बोल रहे हैं कि वेटिंग टाइम आप घटा करके 3 ही मिनट करो, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि कस्टमर वुड एक्सपेक्ट, जब उसको लगा कि कस्टमर जो है ना उसको 10 मिनट वेट करना पड़ रहा है, इसके कारण से वो फोन करना ही छोड़ दे रहा है, मतलब वो ना क्यू को लाइन को छोड़ दे रहा है, तो मतलब वो किसी और बूथ पे चला जा रहा है, किसी और के यहाँ चला जा रहा है, या प्राइवेट वाले के यहाँ, जैसे ये टेलीफोन निगम लिमिटेड है तो प्राइवेट वाले के यहाँ चला जा रहा है, क्योंकि इस पे बहुत लंबा लाइन होता है। तो उसने सोचा कि अगर हम इसको 3 मिनट कर दें, अगर ऐसा हो कि मात्र 3 मिनट ही वेट करना हो कस्टमर्स को, तो उसके लिए वो चाहता है कि दूसरा हम बूथ लगा दें। तो पूछ रहा है कि वेटिंग टाइम 3 मिनट होगा, हाँ, वो अर्लियर वेटिंग टाइम हम लोगों ने नहीं निकाला है ना अभी तक, वी हैवंट कैलकुलेटेड वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, तो just calculate waiting time in the system। WS is equal to LS, what is the value of LS, 0.42 divided by lambda, lambda is how much, lambda 6, हाँ 6 per hour, so how much is that, 0.06, oh 7, 0.707, this much hour, this is the waiting time, ओके। इसको आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 4.2 मिनट, राइट। तो वेटिंग टाइम अभी का है 4.2 मिनट, ओके। वो चाहता है ये वेटिंग टाइम कम हो जाए और 3 मिनट हो जाए, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि बाई हाउ मच टाइम शुड द फ्लो ऑफ कस्टमर इंक्रीज इन ऑर्डर टू जस्टिफाई ए सेकंड बूथ। तो मतलब कस्टमर्स, ओके, अगर हम WS, he is telling, just delete this one, so he is telling that WS should be 3 minutes, formula is
ls upon lambda, where lambda is new lambda means लेमडा प्राइम। हम एक नया टर्म लेकर के चलते हैं। बोल रहा है कि लेमडा प्राइम निकालिए, मतलब फ्लो ऑफ कस्टमर, मतलब अराइवल टाइम, अराइवल कितना से इंक्रीज कर जाएगा अगर हम वेटिंग टाइम 3 मिनट रखें तो। यही क्वेश्चन है एक्चुअली। पॉइंट क्या है कि वो क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये मल्टीपल सर्वर के बारे में बोल रहा है क्या, क्योंकि दो बूथ हो गया तो दो बूथ हो गया, तो अब आप वो फार्मूला लगाओगे मल्टीपल सर्वर मॉडल का। लेकिन वैसा नहीं है, वो बोल रहा है अभी सेकंड बूथ वो लगाना चाहता है, अभी लगाया नहीं है। पूछ रहा है कि अगर मतलब वो चाहता है कि एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम 3 मिनट हो जाए तो कितना अधिक कस्टमर्स और आना चाहिए ऐसा करने। तो एलएस का फॉर्मूला क्या है? एलएस का फॉर्मूला है रो अपॉन 1/रो, एंड दिस इज लेमडा स्टार, दैट इज 3 मिनट्स। अर्लियर ये 4.2 मिनट्स आया था। एंड रो, वेयर रो इज इक्वल टू लेमडा प्राइम अपॉन म्यू। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे हम पुट कर देंगे। सो लेमडा प्राइम अपॉन म्यू, यहाँ पे हो जाएगा म्यू माइनस लेमडा प्राइम इंटू लेमडा प्राइम। हो गया। सो दिस फॉर्मूला इज रिड्यूस्ड इन दिस फॉर्म, दैट इज इक्वल टू 3 मिनट्स। 3 मिनट्स मतलब 3/60। ओके, आवर में हमेशा आवर्स में ही आपको लिखना होगा। ठीक है, अब आप इस यहाँ से आप लेमडा प्राइम निकाल सकते हो। म्यू दिया हुआ है, सर्विस टाइम दिया हुआ है कितना, 3/60, so that is already given. So from here we will calculate. So lambda upon 60 lambda prime is equal to, this will be multiplied, so this is 3 mu lambda prime minus 3 lambda prime square. So ये quadratic equation हो गया। So lambda prime square, 3 everywhere cancelled, और इसको सिंपल लैंग्वेज में आप म्यू इज इक्वल टू 3/60, that is 1/20, that means 0.05 lambda prime। oh there is, अच्छा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इज इक्वल टू दिस इज माइनस, सो इधर आकर के ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर से 3 कैंसिल, लेमडा प्राइम इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि लेमडा प्राइम आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर से। और लेमडा प्राइम यहाँ पे ही कैंसिल हो जाता है ना। ओके, तो जस्ट क्या क्या न्यू है, न्यू न्यू लेमडा प्राइम। हाँ हाँ, 20 60 is converted into 20 ना? तो expected waiting time, यहाँ पर कुछ clear है क्या? This is okay. Why it is new? Expected waiting time in the system should be there, at least for the turn to the,
ओके लेमडा प्राइम इज इक्वल टू 19.95 माइनस नेगेटिव में आ रहा है ना। हाँ, तो ये थोड़ा हाँ माइनस में आ रहा है। हाँ तो यहाँ पे एरर क्या है आपको मैं बताता हूँ। तो देखो हम लोग ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है, अगर थोड़ा सा एरर हो गया समझने में गड़बड़ हुआ, क्यू और सिस्टम को समझने में गड़बड़ हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी हमने क्या किया है, हमने डब्ल्यू एस निकाल लिया, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे डब्ल्यू क्यू निकालना है। सी व्हाट ही इज टेलिंग, it is convinced that customer would expect waiting for at least 3 minutes for their turn to make a call। 3 मिनट क्या है, वो क्यू में वेटिंग टाइम है, मतलब वो अभी सिस्टम में घुसा नहीं है और फोन करने, देखो वेटिंग टाइम इन द सिस्टम मतलब क्या हुआ, वेटिंग टाइम इन द क्यू प्लस जितना उसको टाइम लगेगा सर्विस में वो, ठीक है, दैट इज सर्विस टाइम, दैट इज द टोटल टाइम इन द सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सपेक्टिंग वेटिंग टाइम फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स फॉर देयर टर्न टू मेक ए कॉल, मतलब वो ये सर्विस टाइम को हटा दिया है, तो ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट डब्ल्यू क्यू। सो डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू एल क्यू अपॉन लेमडा and or just lambda prime, and LQ is ls minus rho upon lambda prime. Now just put this one, ls is equal to lambda prime divided by mu minus lambda prime minus lambda prime upon mu divided by lambda prime। ये हो गया, ls को हमने कन्वर्ट कर लिया लेमडा के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे ls है ना, तो दिस इज लेमडा प्राइम डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लेमडा प्राइम हो जाएगा। तो ये चीजें हमने कर ली, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो ये इशू हो सकता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। एक बार आया हुआ है आप लोग का प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। ये क्वेश्चन पिछले आई थिंक 2015 या 16 में आया। So this will be is a complicated 1 by mu minus lambda prime minus 1 by mu, और ये lambda prime से सारा ऊपर का जो lambda prime और नीचे का lambda prime दोनों कैंसिल हो गया, तो आ गया mu minus this will be mu plus lambda prime divided by mu into mu minus lambda prime, mu cancel, so this is lambda prime upon mu into mu minus lambda prime। ये आया आपका वेट डब्ल्यू क्यू, दिस इज द फॉर्मूला। आपको कुछ बुक्स में ना लेमडा और म्यू के फॉर्म में ही डब्ल्यू क्यू और डब्ल्यू एस दिया रहता है, लेकिन हम उसको वैसे याद नहीं रखते। मेरा जो तरीका है मैं रो के फॉर्म में याद रखता हूँ, वो आसान है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होता, लेमडा म्यू एंड ऑल एवरीथिंग, तो रो के फॉर्म में आसान हो जाता है। आप सिर्फ एल एस का वैल्यू याद रखो, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो अब इसमें आपको 3 मिनट्स करने हैं, दैट इज 0.05 is equal to lambda prime divided by this is 3/20, नहीं सॉरी, ये भी 3 मिनट्स, ये भी 3 मिनट्स, तो ये भी हो गया 0.05 इंटू 0.05 माइनस लेमडा प्राइम, ठीक है। ये डब्ल्यू क्यू 3 मिनट्स है ना, तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस वन, so 0.05 to the power q minus this और 0.05 square lambda prime is equal to lambda prime। ये बहुत स्मॉल वैल्यूज आ रहा है lambda prime का। मैं कुछ मिस्टेक कर दिया क्या,
म्यू का वैल्यू क्या होता है 60/3 ना 20 होगा। See here, this is 20 and this is 20. 60/3 mu is equal to 60/3। अब आप आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। दिस मच इंटू दिस मच इज इक्वल टू 1, दैट इज तो हो गया 20 माइनस लेमडा प्राइम इज इक्वल टू लेमडा, और लेमडा प्राइम इज इक्वल टू 10। ये आया लेमडा प्राइम इज इक्वल टू 10 आया। ठीक है, तो पहले कितना था लेमडा? लेमडा वाज 6 earlier, now the lambda has increased to 10 per hour। ओके, तो वही पूछ रहा है कि मतलब बोल रहा है कि बाय हाउ मच टाइम शुड द फ्लो ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द सेकंड बूथ। तो कितना से इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब इंक्रीज होगा बाय 7, सॉरी नहीं, पहले से 6 आ रहा था ना, अब 10 हो गया, मतलब बाय 4 इट विल इंक्रीज, सो द आंसर इज 4। 1 आ रहा है कैसे? डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू 0.5 नहीं लेना है, 0.05 है तो नहीं नहीं 1 कैसे होगा? 0.05 इंटू 20 1 होता है ना, जस्ट मल्टीप्लाई दिस वन, तो दिस इज 1। तो ये तो फिनिश्ड हो गया ना, 20 माइनस लेमडा इज इक्वल टू लेमडा प्राइम, सो लेमडा प्राइम इज इक्वल टू 10 पर आवर। तो हो गया बाय हाउ मच इट शुड इंक्रीज, सो दैट इज 4। ठीक है, पहले से 6 आ रहा था, अब 10 आया, तो कितना से इंक्रीज हो गया? 4। तो आंसर 4 होगा ना कि 10 होगा, तो ऑप्शन में 4 भी दिया जाएगा, 10 भी दिया जाएगा, तो वो कैलकुलेट करना। Estimate the fraction of a day that the phone will be in use। एक दिन में फोन कितना यूज रहता है इसको बताना, फ्रैक्शन ऑफ अ डे। तो ये कैसे निकालोगे? 24 आवर्स में फोन जो है कितना यूज में रहता है वो कैसे निकालोगे? कोई आइडिया? ये कहाँ से फॉर्मूला है? और अच्छा, नहीं वो बाइनोमियल नहीं, नहीं देखो, ये जो क्वेश्चन है वो एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ अ डे दैट द फोन विल बी इन यूज। ओके, दैट इज ओके, इट मे बी इन दैट वे, बट यहाँ पे एक टर्म है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर इसका मतलब क्या होता है, कितना परसेंट आप यूज कर पा रहे हो। मान लीजिए आप 1 घंटा में कितना परसेंट यूज कर रहे हो, उसी तरह से 24 आवर्स में आप कितना परसेंट जो है यूज कर पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर का? ये फॉर्मूला है यूटिलाइजेशन फैक्टर का, रो इज इक्वल टू, रो इज द यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर, विच इज लेमडा अपॉन म्यू। तो लेमडा है आपको 6 है, और म्यू 20 है ना, हाँ 20 है, so that means this is 3/10, that is 0.3, मतलब 30% ही यूज हो रहा है इसका। तो बोल रहा है कि बाई व्हाट फ्रैक्शन फोन विल बी इन यूज। अब वो डे में आप कैलकुलेट करो या मंथ में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
30% ऑफ द डे इट इज इन यूज, तो फ्रैक्शन पूछ रहा है इसलिए 0.3 ही होगा। अगर परसेंटेज पूछता तो 30% हो जाता। तो दिस इज यूटिलाइजेशन फैक्टर, इसको याद रखना है। हम इसके बारे में बताए थे यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो पूछेगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओके हाउ मच परसेंटेज द टेलीफोन बूथ इज आइडल, हाउ मच परसेंटेज टाइम टेलीफोन बूथ इज आइडल, मतलब कोई आदमी नहीं आ रहा है तो कितना समय होगा, तो 30% यूटिलाइज्ड है तो 70% आइडल है, मतलब 1 माइनस रो। तो यही तो है ना, पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस रो, मतलब देयर इज नो कस्टमर इन द सिस्टम, दैट इज 1 माइनस रो। सिंपल सा यही चीज था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, या पूछ सकता है यहाँ पे पूछ देगा कि विल बी आइडल, तो आइडल का मतलब पी नॉट निकालना है या फिर 1 माइनस रो का वैल्यू निकालना है। तो भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं बस अब। ऑन एन एवरेज 96 पेशेंट्स पर 24 आवर डे रिक्वायर द सर्विस ऑफ एन इमरजेंसी क्लिनिक। ठीक है, हमें लेम्डा मिल गया 96 पर 24 आवर, मतलब कितना पर आवर आ रहा है, तो 24 आवर में 96 है, सो 24 आवर में 96 है ना, तो 1 घंटे में 4 आ रहा है, यस, सो दैट इज 96 अपॉन 4 ना, 24 पर आवर, दैट इज 4 पर आवर। अच्छा, ऑन एन एवरेज ए पेशेंट रिक्वायर्स 10 मिनट्स ऑफ एक्टिव अटेंशन, मतलब सर्विस टाइम बता रहा है आपको 60 अपॉन 10 पर आवर, 6 पर आवर, म्यू इज गिवन। तो सबसे पहले आप रो निकाल लो, लेम्डा अपॉन में 4 अपॉन 6, दैट इज अराउंड 2/3, ओके लेट इट बी 2/3। ये लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि ये जो है ना इनफाइनाइट लेंथ क्यू मॉडल है, लेकिन अब सिंगल सर्वर है या मल्टीपल सर्वर है चेक करते हैं। Assume that the facility can handle only one emergency at a time, मतलब ये बता दिया कि ये क्या है, सिंगल सर्वर है, एक ही, हाँ एक ही है, तो सिंगल सर्वर इनफाइनाइट क्यू लेंथ मॉडल, मतलब M1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट यही है, तो ये मॉडल है। तो अब सारा फॉर्मूला वही लगने वाला है, ठीक है। Suppose that it costs the clinic 100 per patient treated to obtain an average service time of 10 minutes, मतलब अगर आप 10 मिनट में हर एक कस्टमर को आप सर्व कर रहे हो तो 100 रुपए का कॉस्ट आ रहा है, and that each minute of decrease in its average time would cost 10 rupees per patient treated, मतलब आप अगर 9 मिनट में करने वाले हो, 9 मिनट में अगर आप सर्विस दे रहे हो तो कॉस्ट बढ़ करके 110 रुपए हो जा रहे हैं, मतलब हर एक मिनट जैसे जैसे घटेगा, एवरी टाइम द सर्विस टाइम यू आर डिक्रीजिंग, मतलब कम टाइम में आप सर्विस कर रहे हो तो इसका मतलब कॉस्ट तो बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट बढ़ रहा है। अगर आपने 8 मिनट में कर दिया तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है, बोल रहा है कि दैट ईच मिनट ऑफ डिक्रीज इन इट्स एवरेज टाइम वुड कॉस्ट 10 पर पेशेंट treated. How much would have to be budgeted by the clinic to decrease the average size of queue from this patient to this patient? तो साइज ऑफ द क्यू पूछ रहा है कि उसको आपको एल क्यू इजकल टू पहले कितना है 4/3, अब आपको नया एल क्यू चाहिए 1/2। तो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने में ऑब्वियस सी बात है कि कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होगा, आप लाइन का क्यू का संख्या चाहते हो कि घट जाए तो उसके लिए एक्स्ट्रा खर्च होगा। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस वन, तो सबसे पहले तो फाइंड आउट करो कि यहाँ से एल क्यू का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है, यहाँ से एल क्यू का वैल्यू क्या आ रहा है। तो जस्ट सी द फॉर्मूला, एल क्यू इज इक्वल टू एल एस माइनस रो, एल एस इज इक्वल टू रो माइनस रो, ठीक है, रो अपॉन 1 माइनस रो इज इक्वल टू 2/3, so 2/3 divided by 1/3 minus rho 2/3,
that is 2 minus 2 by 3, how much is that? 4 by 3, मतलब यही वाला है। दैट मीन्स क्या, पहले अभी जब सर्विस टाइम आपका 10 मिनट्स है, ठीक है, या इसका मतलब कि 1 घंटे में वो 6 पेशेंट्स को देख रहा है डॉक्टर, तो अगर 6 पेशेंट को देख रहा है तब लेंथ ऑफ द क्यू है 4 by 3, हमें चाहिए लेंथ ऑफ द क्यू 1 by 2, तो इसका मतलब 1 घंटे में ज्यादा कस्टमर देखने होंगे मुझे, समझ में आ रहा है? तो हमें म्यू का वैल्यू निकालना है फॉर एल क्यू इज इक्वल टू दिस मच, तो एल क्यू आपको दे दिया है, म्यू एल क्यू इज गिवन 1 by 2, अब आपको यहाँ पर म्यू का वैल्यू निकालना है, समझ में आ रहा है? ओके, तो न्यू का यहाँ पे क्या है, रो अपॉन 1 माइनस रो, अब इसको आप कन्वर्ट कर दो किसमें, लेमडा बाई म्यू में, तो लेमडा अपॉन म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू, अब आप इसको इधर करोगे तो हो जाएगा लेमडा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लेमडा, ठीक है, ये मतलब पूरा कन्वर्ट होके लेमडा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लेमडा, माइनस रो का वैल्यू क्या होता है, लेमडा अपॉन म्यू। अब यहाँ पे म्यू कौन सा है, न्यू म्यू है, ठीक है, ये म्यू आप म्यू प्राइम कर दो, आसान रहेगा समझने में। लेमडा इज गिवन हाउ मच 4, जस्ट पुट इट 4 divided by mu prime minus 4 upon mu prime is equal to 1 by 2। ये 4 और 4 इसको हटाओ यहाँ से, क्या करना होगा, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, तो अगर 4 से डिवाइड किया तो 1 by 8 हो गया, ये हो गया 1 by mu prime minus 4 और ये हो गया 1 by mu prime। अब आप इसको लोगे तो mu prime into mu prime minus 4, यहाँ पे चला गया म्यू प्राइम माइनस दिस वन इज म्यू प्राइम, और ये माइनस हो गया प्लस, ठीक है, ये जाएगा ऊपर, तो ये दोनों कैंसिल्ड, सो आ गया यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 by 8 इज इक्वल टू 4 अपॉन म्यू प्राइम इंटू म्यू प्राइम माइनस 4, तो म्यू प्राइम स्क्वायर माइनस 4 म्यू प्राइम इज इक्वल टू 32, और म्यू प्राइम स्क्वायर माइनस 4 म्यू प्राइम माइनस 9 and 4, 8 और 4, म्यू प्राइम इज इक्वल टू 8 माइनस में आएगा और 4 प्लस, ओके, तो म्यू प्राइम इज इक्वल टू माइनस 4, एक 8 आएगा और एक माइनस 4 होगा, ठीक है, 8 और माइनस 4 होगा, म्यू माइनस 8 और म्यू प्लस 4, हाँ ठीक, तो एक 8 आया एक माइनस 4 आया, माइनस 4 वाला तो कैंसिल हो गया, वो काम का नहीं है, म्यू प्राइम इज इक्वल टू 8 आ गया, मतलब क्या हो रहा है, 1 घंटे में अब पहले 6 कस्टमर देख रहा था, अब उसको 8 कस्टमर्स देखने होंगे, राइट, तो अब उसको 8 कस्टमर्स पर आवर देखना होगा। अब पूछ रहा है कि कितना उसका बजट बढ़ जाना चाहिए, पहले वो 100 रुपये एक कस्टमर पे दे रहा था, एक पेशेंट पे, अब उसका बजट बढ़ करके कितना हो जाएगा, 2 कस्टमर इंक्रीज हो गया ना, नहीं वेट मिनट, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको यहाँ पे न्यू प्राइम इक्वल टू 8 आया, तो आप टाइम निकालो, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है पर मिनट, कहा ईच मिनट, ये पूछ रहा है ना, तो सर्विस टाइम कितना हो गया, सर्विस टाइम इक्वल टू 60 अपॉन 8, दैट इज हाउ मच मिनट्स, 7.5 मिनट्स, ओके, दैट मीन्स इंक्रीज कितना हुआ, सॉरी डिक्रीज कितना हुआ, सो डिक्रीज इन टाइम, डिक्रीज इन सर्विस टाइम, पहले कितना टाइम लग रहा था, 10 मिनट्स पर कस्टमर, सर्विस टाइम वाज 10 मिनट्स, नाउ इट इज 7.5, सो 2.5 मिनट्स का डिक्रीज हुआ, मतलब कॉस्ट कितना
बढ़ना चाहिए। 1 मिनट घटने पे 10 रुपीज, तो 2.5 मिनट्स घटने में 25 रुपीज एक्स्ट्रा उसको चार्ज लगेगा। मतलब न्यू बजट जो होगा एक सर्वर के लिए, सॉरी एक पेशेंट के लिए न्यू बजट जो होगा वो कितना हो जाएगा, बजट विल बी 100 प्लस ये 25, दैट इज 125 रुपीज। So this is the answer. So by how much the budget should be increased? No, how much budget should be there, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है। इंक्रीज, इंक्रीज अगर लिखता तो 25 आंसर होता। ये पूछ रहा है कितना बजट होना चाहिए, तो मतलब 125, टोटल बजट विल बी 125 फॉर वन पेशेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आई थिंक ये आईएएस में पूछा गया था 1993। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा सा और लेंदी क्वेश्चन है और ये सॉल्व नहीं करूंगा अभी। यहाँ पे पूछ रहा है क्या, एक रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज वन रिजर्वेशन क्लर्क ऑन ड्यूटी एट ए टाइम, मतलब सिंगल सर्वर। ही हैंडल्स इंफॉर्मेशन ऑफ बस शेड्यूल एंड मेक्स रिजर्वेशंस। कस्टमर अराइव एट द रेट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 8 पर आवर, ये सिंपल दिया हुआ है। एंड क्लर्क कैन सर्व 12 per hour. After stating your assumption, answer the following. अच्छा, assumptions आपको लिखने हैं। What is the average number of customer waiting for the service of the clerk? मतलब waiting for the service of the clerk. Average number of customers waiting for the service. Waiting for the service. इसका क्या मतलब हुआ? LS पूछ रहा है या LQ पूछ रहा है? LS पूछ रहा है वेटिंग फॉर द सर्विस ऑफ द क्लर्क, मतलब सर्विस नहीं हो रहा है जिसका, वो उनका नंबर बताइए। दोज हु आर वेटिंग फॉर द सर्विस, मतलब जिसका एक होता है कि सर्विस जिसका हो रहा है वो भी इंक्लूडेड है। एलएस में कौन होगा, तो जो वेट कर रहा है उसका भी और प्लस जो जिसका सर्विस हो रहा है उसका भी, दोनों इंक्लूडेड है, वो एलएस हो गया ना। लेंथ ऑफ द सिस्टम, लेंथ ऑफ सिस्टम क्या होता है, तो जो लोग वेट कर रहे हैं वो भी होगा और प्लस जिसकी सर्विस हो रही है, कस्टमर्स गेटिंग सर्व्ड, दोनों होंगे। ठीक है, तो ये होता है एलएस। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ लेंथ ऑफ क्यू होता है, मतलब दोज हु आर वेटिंग फॉर द सर्विस। तो यहाँ पे एलक्यू निकालना है, तो आप एलक्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज टाइम ए कस्टमर हैज टू वेट बिफोर गेटिंग सर्विस। मीन्स यहाँ पे डब्ल्यू क्यू पूछ रहा है, तो एल क्यू पूछ रहा है, फिर डब्ल्यू क्यू पूछ रहा है, बिफोर गेटिंग सर्विस। ओके, द मैनेजमेंट इज कंटेम्पलेटिंग टू इंस्टॉल ए कंप्यूटर सिस्टम टू हैंडल द इंफॉर्मेशन एंड रिजर्वेशन। दिस इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द सर्विस टाइम फ्रॉम 5 to 3 मिनट्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पहले सर्विस था 5 मिनट्स, 12 कस्टमर पर आवर, मतलब कितना सर्विस टाइम हुआ, 5 मिनट। एक कस्टमर पे 5 मिनट देना होगा, तभी तो 1 घंटे में 12 देख सकते हो। तो पहले 5 था, अब वो कह रहा है कि सर्विस टाइम को घटा के 3 कर दो। ओके गुड, मतलब म्यू आपको चाहिए कितना, 60/3, 20 अब चाहिए, 20 पर आवर चाहिए। अब म्यू अगर 20 पर आवर चाहिए तो पूछ रहा है the additional cost of having the new system works out to 50 per day। मतलब आपने जो नया सिस्टम लगाया है वो 50 रुपये पर डे के हिसाब से वो एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला है। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ गुडविल ऑफ हैविंग टू वेट इज एस्टिमेटेड टू बी 12 पैसा पर मिनट स्पेंट वेटिंग बिफोर बीइंग सर्व्ड, शुड द कंपनी इंस्टॉल द सिस्टम, एज्यूम 8 आवर्स वर्किंग डे। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बट एक्चुअली इसको सॉल्व करना चाहिए। ये बोल रहा है कि एक जो बंदा जो वेट कर रहा है ना, 1 मिनट अगर वो वेट कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका 12 पैसा वो चला गया। ये बोल रहा है 12 पैसा, गुडविल का मतलब वही होता है, 12 पैसे आपके चले गए। 1 मिनट अगर एक कस्टमर ने वेट किया तो 12 पैसे आपके चले गए।
तो हम चाहते हैं कि उसका वेटिंग टाइम घट जाए, ठीक है। तो हम हमारा उसका वेटिंग टाइम घटाना चाहते हैं। तो शुड द कंपनी इंस्टॉल द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब आप देखिए कि आपको फायदा हो रहा है कि नहीं, बेसिकली, है ना। 50 रुपया एक्स्ट्रा तो लग रहा है, लेकिन अगर आप ये 50 रुपया ना लगा करके आप ऐसे छोड़ देते तो मतलब कस्टमर को 2 मिनट ज्यादा वेट करना पड़ता, लेकिन बोल रहा है कि 12 पैसा पर मिनट जो है ना, वो आप समझिए कि आपका लॉस हो रहा है। अगर कोई कस्टमर 1 मिनट वेट कर रहा है तो 12 पैसा वेट लॉस हो रहा है। अगर 2 मिनट वेट कर रहा है तो कितना पैसा लॉस हो रहा है, 24 पैसे। और आपको न्यू सिस्टम बनाने में, स्टैब्लिश करने में कितने खर्च आ रहे हैं, 50 रुपये पर डे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या आपको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये इंस्टॉल कर देते हो तो इतना बच जाएगा, अगर आप ये इंस्टॉल नहीं करते हो तो इतना खर्च हो जाएगा। अब आप देखिए कि दोनों में आपका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, किस में प्रॉफिट हो रहा है, क्या आपको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे। करना क्या होगा, तो आपको वेटिंग टाइम निकालना होगा, डब्ल्यू वेटिंग टाइम बिफोर बीइंग सर्व्ड, मतलब डब्ल्यू क्यू निकालना होगा, सही। वेटिंग टाइम अगर आपने निकाल लिया, पांच पांच जब कस्टमर्स था, सॉरी 5 मिनट जब सर्विस टाइम था, म्यू इज इक्वल टू जब 12 पर आवर था, तो डब्ल्यू क्यू निकालिए। और जब म्यू आप चाहते हैं 20 पर आवर हो जाए तब डब्ल्यू क्यू निकालिए, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मान लिया कि यहाँ पे डब्ल्यू क्यू आया 5 मिनट्स और यहाँ पे आया 20 मिनट 15, सॉरी यहाँ पे तो कम हो जाएगा ना, यहाँ पे ले सपोज 2 मिनट्स आ गया, क्योंकि आप सर्विस बहुत फास्ट कर रहे हैं तो कंप्यूटर के कारण से, तो 2 मिनट्स हो गए, ओके। तो एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट्स 5 मिनट्स। सो कितना का आपको सेविंग हो रहा है, 3 मिनट्स, 3 मिनट्स पर कस्टमर आपको सेविंग हो रहा है। 1 घंटे में कितना कस्टमर आते हैं, ऑलमोस्ट 8 पर आवर, तो 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, इतना पर आवर आपका बचत हो रहा है, ठीक है। अब कितने घंटे का काम हो रहा है, 8 घंटे का काम हो रहा है, फिर से आप 8 मल्टीप्लाई करोगे तो इतना पर डे हो गया, तो इतना आपका सेविंग हो रहा है, इतना इंटू 1 मिनट का 12 पैसा है तो 12 पैसे का सेविंग हो रहा है, तो कितना हुआ, 8 इंटू 3 इंटू 12, क्या ये 50 रुपीज से ज्यादा है या कम है, आपको देखना है। 64 इंटू 3 इंटू 12 कितना आएगा, कितना, ओके 23 रुपीज पर डे, जो भी है ऑलमोस्ट इतना आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इतना का सेविंग हो रहा है। आप अगर कंप्यूटर लगा रहे हो 50 रुपये पर डे दे रहे हो, लेकिन सेविंग कितना, 23 रुपये, इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना आपको चार्ज लग रहा है कंप्यूटर लगाने के कारण से, तो आपको 27 रुपये का ज्यादा खर्चा हो गया। तो आप लगाओगे, नहीं लगाओगे, है ना। तो आप मतलब 27 रुपीज एक्स्ट्रा आपको खर्च करना पड़ा है, तो क्या कंपनी को इंस्टॉल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना, अगर कंप्यूटर नहीं लगा रहे थे तो 23 रुपये का लॉस हो रहा था, कंप्यूटर लगाए तो 50 रुपये टोटल लॉस हो रहा है, मतलब 27 रुपीज एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, तो हम कंप्यूटर क्यों लगाए, समझ में आ रहा है। तो लेकिन मैंने एक एस्टिमेट लिया है कि डब्ल्यू क्यू अगर 2 मिनट हो गया और डब्ल्यू क्यू यहाँ 5 मिनट है, तो दोनों पहले डब्ल्यू क्यू निकालिए कितना आता है, उसके बाद उसको, क्योंकि ये है एक कस्टमर का वेटिंग टाइम, 1 घंटे में 8 कस्टमर्स आते हैं, तो टोटल कितना वेटिंग टाइम हो गया, ठीक है। और उसको फिर 8 घंटे से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक दिन में 8 घंटे का काम हो रहा है, फिर 12 पैसे से मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल जो होगा वो 50 से एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी वो उसको एक कंप्यूटर लगाना है।
ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ये सब एनालिसिस करना होता है। ओके, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके।